Welcome students. So this is the third video of that biomolecules. See, last time actually we completed the disaccharides in all respects. The whatever disaccharides are given, so those that structure also nicely we all have discussed in my last video, and I also actually started at polysaccharides, but because of that disturbance, because of that I could not complete that part. So let's start with this polysaccharides. See, polysaccharides, saccharides, we all are knowing, we are familiar with this saccharide word. Polysaccharide means what? Poly means many, saccharide is sugar. Okay, so monomeric units will be there, and they are because they are in that large number, we are actually using here poly. Okay, so polysaccharides, in this part we are having this starch, then this cellulose, and also starch, cellulose and glycogen. Okay, I hope you all can see this. See, this is glycogen. See, in my last video I wrote lactogen, sorry, so it was actually not correct one. That glycogen actually is a brand of that milk powder. So because of that disturbance I wrote it lactogen, so please correct it. It is glycogen. Okay, so starch is found in the plant kingdom. The starch is the storage material in plants. Okay, the food will be stored in this form, starch. In animal, it is also called as animal starch. Okay, so animal starch, glycogen, this is also that will be stored in our body. So in adipose tissues, in liver, in brain, so these glycogen is present. Okay, so during fasting also this glycogen helps us, that actually helps in providing the energy. Okay, so glucose, this will provide us glucose, and glucose will in turn will give energy. Okay, cellulose, this is like the very abundant that it is present in plants, of course. Cell wall, so that only is made up of what? Cellulose. So let's study these polysaccharides. Okay, so we will start with what? Starch. Starch is composed of two components. Okay, starch is composed of amylose and amylopectin. Okay, amylose and amylopectin. If I am making the structure here, will you be able to see this? See, amylose. In this case, amylose actually that consists this 15 to 20% of this starch that will be made up of this amylose, and 80 to 85% of starch is made up of this amylopectin. Okay, so large amount will be of this amylopectin and amylose. Okay, so let's see what will be the structure of this, how this amylose is made up of, and this amylopectin also. Let's talk about the monomeric unit and the structure also, the difference between these two, let's discuss. Okay, so amylose, this is made up of this alpha D glucose. Alpha D glucose, this pyranose structure I am making here, this Hubbard pyranose structure of glucose. Okay, so in this case we are having alpha D glucose means first C1 will have the OH group, lower side I am writing, that means what? In Fischer projection it will be shown on right hand side. Okay, so OH, then this is the carbon C2, C1, C2. If you want, you can number it like this: C1, C2, C3, C4. This is C5, and one more. I'm rubbing this. This is CH2OH. We are writing like this: CH2OH, and H will be written here. Okay. Now this is the third one. Third one will have the different projection of different orientation of this hydroxyl group. And in this case, this H will be written here. In this case, OH, this H, like this. Okay, so this is the Hubbard structure. The first C1 is making glycosidic bond with the other
I'm rubbing this also. Okay, so in this case I'm having one more this structure. Here we are writing OH. This is O will be written here. Exactly the same I'm making this side also. Okay, this is OH, this H, this OH will be present here. Third carbon, you all are knowing, in my previous video also I told you where exactly this OH group will lie in glucose, alpha glucose. Okay, so this is the structure. Many times we discussed this. So I hope you all are knowing this way to write OH and way to write H. Okay, so second one OH will be written at the lower side. Okay, so this is also the अल्फा डी ग्लूकोज, दिस इज ऑल्सो अल्फा डी ग्लूकोज. अब यहाँ से OH और एक H यहाँ से निकल के आपके पास बचेगा क्या, देख लीजिए, दिस O. Through this oxygen, these two monomeric units will be joined. Okay, they will combine by this glycosidic linkage. इस तरह से ये बन जाएंगे. फिर यहाँ भी आप एक और यहाँ भी देखा दीजिए, ठीक है. और इसके बाद मतलब यहाँ पे भी आप ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से इसे जोड़ दें इस तरह से. यहाँ पे CH2OH, दिस इज ऑक्सीजन. ओके, हियर वी आर हैविंग ऑक्सीजन हाइड्रो 1 2, दिस इज थर्ड कार्बन, दिस वन विल बी 4. ओके ओके, सो ये देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर ये एक अमाइलोज. सो ये अमाइलोज, दिस chain bonded glycosidic bond is present between C1 C4 glycosidic linkage. Okay, glycosidic linkage C1 C4 of alpha D positive glucose. So this will be the monomeric unit in case of amylose. I hope you understood this one. You all can take the screenshot. Okay, now next is amylopectin. Okay, so amylopectin I'm going to make this side. Okay, I'm rubbing this. ये पूरा आपका अमाइलोस. दूसरा देख लीजिए amylopectin. Okay, see, in this case one more amylose I'm going to make here. Suppose okay, so this is also alpha D glucose. देख लीजिए हावर स्ट्रक्चर यहाँ पर. ओके, so this will also make what? Okay, now in this case, suppose this one more I am making here. H OH, यहाँ देख लीजिए, ये OH, यहाँ H, ये OH ऊपर और यहाँ H, ये OH नीचे, यहाँ ये देख लीजिए CH2OH. Okay, so these two are also bonded with this C1 C4. यहाँ पे ये भी आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ा है. ये चेक कीजिए, ये इस तरह से, ठीक है. ये यहाँ पर आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की मदद से ये मोनोमेरिक यूनिट जुड़े हुए हैं. ये एक अमाइलोज का, ये एक अमाइलोज, एक ये अमाइलोज. इफ द बॉन्ड बिटवीन दिस फर्स्ट कार्बन, this carbon number 1 and this sixth carbon. Okay, this is sixth carbon because 1 2 3 4 5 and this is sixth, so carbon number 6. So this carbon is making bond with this first C1 of another amylose. See, this is amylose because C1 C4 glycosidic, they are combined with, they are linked with this glycosidic bond. Through this oxygen they are attached. And in this case what you are going to observe, ये सभी C1 C4 इस तरह से इनके बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. ये एक अमाइलोज, एक और अमाइलोज, ये दो अमाइलोज इफ दे आर फर्दर ब्रांच्ड. अगर ये और भी यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से ये इसका OH ये हट गया, यहाँ से आपका H हट के ये दिस
bond, suppose you are going to make bond like this. Okay, so this glycosidic bond between this first and sixth carbon. Okay, so if this two amylose, if they are also branched like this, so this the resulting structure will be of amylopectin. This will be of amylopectin. Okay, so this is amylopectin. And amylose, if you are actually not if this amylose chain, if it is not branched with another amylose, then you are going to see this, if they are not bonding together, so the amylose will be separated, will be left like this. But because they are actually see amylose, because they are having this this tendency to branch together, that is why very less number of amylose will be present. Immediately they are actually going to they are going to combine with the another amylose, and then amylopectin will be formed. Amylose ये है आपका 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ा होना, ये जो चेन है ये अमाइलोज। और दूसरा, अगर ये एक अमाइलोज दूसरे अमाइलोज के साथ अगर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की मदद से 1 और 6 के बीच में अगर यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बने, तो दिस विल रिजल्ट इन अमाइलोपेक्टिन, तो ये बनेगा आपका अमाइलोपेक्टिन। तो बहुत ही कम आपका अमाइलोज है जो कि ऐसे ही सेपरेटली बिना ब्रांचिंग के रह पाएगा। बाकी जितने भी हैं वो 80 to 85% अमाइलोज, दे आर गोइंग टू make glycosidic bond between this carbon number 1 and 6, and then further branching will give rise to amylopectin. Okay, so amylose and amylopectin, these two are components of this starch. So I hope you understood this starch. Now next, cellulose. Okay, cellulose, before actually telling you this cellulose, let me yes, let me show you this. Okay, here only I am going to show you this, because I want you to take the screenshot. Okay, to draw this, that also will be difficult part for you, that is why you can take the screenshot. Okay, and here cellulose. So cellulose will be what? The same C4 C1 C4 C1 C4 glycosidic bond you are going to see, but the monomeric unit will be different. In this case we are having alpha D glucose, in that case beta D glucose, that's it. Okay, beta D glucose. So beta D glucose, that's what beta means OH group will lie here on the lower side if that OH was oriented. Okay, so that was anomeric, they both are what? Anomers of each other. तो यहाँ पे OH ग्रुप अगर वो लोअर साइड में हमने दिखाया है तो वो है अल्फा, और बीटा विल बी लाइक दिस, OH विल बी शोन here on the upper side. Okay, so OH will be written like this. Here also you are sorry, this is H lower side, and then third part, this everything will remain the same. Okay, so CH2OH like this. So this will be what? Cellulose. So see, this is beta. One more that pyranose structure of this glucose I am going to make here. This OH and this C4, here also you are going to see what? OH and H. So this OH will make bond like this. Oxygen, okay, you can only this, okay, like this you can show. This one is glycosidic bond C1 and this is C4 because the numbering will start from this carbon 1, this is 2, 3 and this is 4th carbon. Okay, so C4 will make glycosidic bond like this. So this will be the structure of the polysaccharide, this cellulose. Okay, so cellulose, I hope you understood, because that is very much similar to this starch. Okay, now next is this is starch, not exactly starch. This is actually resembling what? Means this is very much similar to that amylose, amylose component of that starch. Okay, ये amylose से मिलता जुलता है, देख लीजिए। सिर्फ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है उसका ओरिएंटेशन थोड़ा सा ये अलग क्यों है? क्योंकि ये ऊपर आपका जो बीटा डी ग्लूकोज के साथ यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है। ठीक,
तो ये था आपका अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन एंड सेल्यूलोज वी कंप्लीटेड. And more branched structure of this amylopectin, okay, more highly branched. So if you want, you can write down highly branched this amylopectin. That only will give rise to amylopectin will give rise to glycogen. Glycogen ये आपका हाईली ब्रांच जो आपका चेन होगा अमाइलोपेक्टिन का. ठीक है, तो ये सब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड. You might have taken the screenshot also. So this is actually the cellulose, the beta D glucose. They are combined together. This is amylopectin. और highly branched amylopectin जो है वही होगा आपका glycogen. Glycogen, that is what? Glycogen is animal starch. We are saying this is also the storage material present in animals. और storage material जो plants में है वो है starch. और यहाँ पर cellulose that is also present in the cell wall of that cell present in the plants. Okay, so that also is present in plants. Cellulose, that is the very abundant molecule, very large molecule, and in large amount also it is present in plants. Okay, cellulose also in plants. Okay, so animal starch आपका एक है glycogen, वो ध्यान रखिएगा. Glycogen is very much similar to what? Amylopectin, but it is highly branched amylopectin. Do remember this? Highly branched amylopectin is glycogen. So we completed this carbohydrate part. The disaccharides, that day only we completed, and now the polysaccharides also is complete. Okay, so let's start this proteins part. I hope you took the screenshot. Shall I rub this? Okay. See. Now, proteins. Proteins are what? Proteins. So, we saw that the monomeric units were actually glucose, and glucose only was oxidizing, means it is undergoing this oxidation, and glucose only is supplied to each cell, and then see the in the blood also, means throughout the body this glucose will be circulated, and this glucose is responsible for providing energy to the whole body for different functioning, normal functioning and growth of that body. The energy is required, and this energy will be given, that will be liberated by this oxidation of glucose. So how much that important this carbohydrates were, we all have actually seen. This is actually the fuel of the human body, or you can say in all the different living organisms. This is actually, carbohydrates are what? The fuels, you can say. Okay, so they are providing energy. Now proteins. Proteins are even more important. Why? Because see, they are also very much important. This proteus in Greek, this protein is derived from the word proteus. Proteus in Greek, actually it is that proteus means what? Important, that primary. Okay, so very important this proteins are. Okay, so they are also required by the body for the growth and repair of the body. So the growing children also, they need this protein. Okay, and suppose the athletes also, the bodybuilders, they are actually they also need extra proteins they are taking. So intake of extra protein helps those bodybuilders to see the more that growth and the development of the muscles and all the for various purposes this protein is required. Okay, so protein very much essential, and the sources of protein also is known to you. See, it is present for vegetarians, actually it is present in the beans also and the pulses. So they are containing this protein, and the non-vegetarians, so they are knowing that fish or egg albumin, so these are the rich sources of proteins. Okay, so let's see the green vegetables also, many of them they are having this proteins. Okay, so now the proteins, they are
made up of what? Amino acids. Okay. See, carbohydrates were having what? The monomeric unit, generally the monomeric units were what? The monosaccharides. Okay. So here your monomeric unit will be what? The amino acids. So let's understand what these amino acids are. Okay. Now see, in this case, this H, this is C double O H, and here we are having NH2. In this case, we all are knowing the primary functional group is carboxyl group, and the carbon which is next to this carboxyl carbon, next to this carbon is this C present here. Adjacent carbon will be called as alpha carbon. अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ जो भी ग्रुप्स है, ये अल्फा हाइड्रोजन, दिस विल बी अल्फा अल्काइल ग्रुप, एंड दिस विल बी कॉल्ड एज अल्फा अमीनो ग्रुप. ओके, ये ग्रुप अमीनो ग्रुप, तो ये आपका अल्फा अमीनो ग्रुप. तो यहाँ पर ये जो अल्फा अमीनो ग्रुप है आपका, तो ये जो पार्ट है ये आपका यही डिसाइड करेगा अमीनो एसिड्स. तो विच टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स वी आर हैविंग? दिस अल्फा, this is called as alpha amino acids. Alpha amino acids. Amino acids can be classified on the different basis. पहले हम बात करते हैं alpha, beta, gamma, like that. Suppose this amino group. Suppose your amino group is present here in with this carbon. Okay, means the next carbon, means adjacent carbon के पास NH2 यहाँ पे ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि एडजेसेंट कार्बन के भी नेक्स्ट कार्बन. ओके, तो यहाँ पे देखिए, दिस इज फंक्शनल ग्रुप COOH, देन नेक्स्ट विल बी कॉल्ड एज अल्फा, दिस विल बी कॉल्ड एज बीटा. सो दिस इज एक्चुअली द एग्जांपल ऑफ व्हाट? बीटा अमीनो एसिड्स. एंड इफ यू आर एक्चुअली मेकिंग मोर दैट लॉन्गर चेन, तीसरे कार्बन के साथ अगर अमीनो ग्रुप जुड़ा है तो गामा अमीनो एसिड, डेल्टा अमीनो एसिड एंड सो ऑन. ओके, लेकिन हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है अल्फा अमीनो एसिड. वाई? बिकॉज वी आर एक्चुअली स्टडिंग प्रोटीन. सो प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ व्हाट? अल्फा अमीनो एसिड्स. ओके, सो अल्फा अमीनो एसिड्स, 20 अमीनो एसिड्स, वेरी एसेंशियल. दोज अमीनो एसिड्स आर essential and non-essential. About them also we are going to talk. So very important amino acids we are having. अल्फा अमीनो एसिड्स के बारे में हम ज़्यादा बात करेंगे यहाँ पर. और जो प्रोटीन्स, अब हम सबसे पहले क्लासिफिकेशन की बात करें. अमीनो एसिड्स, अमीनो ग्रुप इज प्रेजेंट एंड ऑल्सो दिस कार्बोक्सिलिक ग्रुप. ओके, एसिड वर्ड आया है कार्बोक्सिलिक ग्रुप की वजह से. अमीनो यानी NH2, तो ये दोनों तो रहेंगे ही. चलिए देखते हैं यहाँ पर प्रोटीन्स का क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स. ओके, सबसे पहले एसिडिक, न्यूट्रल एंड बेसिक अमीनो एसिड. ओके, एसिडिक, so the examples are what? Aspartic acid, or suppose you are having here aspartic acid, this CH2 COOH, this is also COOH. So two see carboxylic groups are present because of this. देखो, ये और ये तो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे एक दूसरे से. ये बेसिक और ये एसिडिक पार्ट बच गया. क्या? ये एक और कार्बोक्सिल ग्रुप, जिसकी वजह से ये अमीनो एसिड क्या होगा? एसिडिक. उसके बाद देख लीजिए न्यूट्रल मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ एसिडिक ग्रुप. ओके, नंबर ऑफ एसिडिक that group, carboxylic group, acidic group will be more, and in this case neutral. So same number of amino and same number of this carboxylic group will be present in case of this neutral amino acids. ठीक है, देख लीजिए न्यूट्रल. हमारे पास एक एग्जाम्पल यहाँ ग्लाइसिन का ले सकते हैं. ग्लाइसिन हो गया. एलानिन ऑल्सो यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ दिस H और H. अगर दोनों ही H है तो ये होगा एग्जाम्पल आपका ग्लाइसिन का. और एक और एग्जाम्पल इफ यू वांट यू कैन टेक हियर COOH, ये है एलानिन.
CH3 I wrote here. यहाँ पे देख लीजिए NH2. Okay, so this is what this glycine means same number of amino and same number of carboxylic group will be present in case of neutral amino acids. Okay, now basic. So in case of basic, see arginine also is one of the very important this basic amino acid. So let's see what the structure of this NH2. Okay, now this is what CH2, 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 then CH, this is NH, then it is bonded with one H, C, this is NH and this is NH2. This is the structure of, I hope you all can see this part. No, you cannot. Huh? So I am rubbing this and I am making, and up to this part, will you be able to see this? This also you are not able to see. Okay, I am making here. See, acidic, neutral and basic. So example, in acidic we took the aspartic acid, COOH, this is H, this is NH2, and here we are having CH2COOH. Okay, this is aspartic acid. Okay, this is aspartic acid. Acid, the word only will tell you that okay, the amino acid acidic in nature, so carboxylic group will be more in number as compared to the amino group. Okay. Now neutral means the same number of carboxylic group and the COOH. Here you are having NH2 and here you are having this glycine, very important one. This is the sweetest. देख लीजिए, कोई भी sweet कार्बोहाइड्रेट्स वी सॉ दैट ओके दे वर स्वीट इन टेस्ट. ओके सर, उसमें भी हमने देखा शुगर्स और नॉन शुगर्स, मतलब शुगर्स यानी आपके जितने भी हमने उसमें वहाँ पे भी क्लासीफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्वीट टेस्ट एंड नॉन शुगर्स, वो भी हमने देखा था. पर यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ ग्लाइसिन, सिर्फ यही एक स्वीट टेस्ट का है, बाकी सारे के सारे दे आर एक्चुअली नॉट हैविंग दिस पर्टिकुलर दैट नेचर. ओके, स्वीटनेस किसी में भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही स्वीटेस्ट अगर कोई एमिनो एसिड है तो वो है ग्लाइसिन. ध्यान दीजिएगा, ग्लाइसिन H दोनों ही तरफ H होने की वजह से इसे हम कहेंगे दिस इज ऑल्सो स्वीटेस्ट, यू ऑल कैन से, एंड इट इज एक्चुअली ऑप्टिकली इनएक्टिव. ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि ऑप्टिकली इनएक्टिव. ओके, सो ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है? क्योंकि इसका कायरल कार्बन, ये यहाँ पे देख लीजिए, ये एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है. दो सिमेट्रिकल ग्रुप्स यहाँ प्रेजेंट, दो सेम ग्रुप्स यहाँ पे प्रेजेंट है. तो ये जो कार्बन है ये एसिमेट्रिक नहीं रहा, या ये कहेंगे कायरल नहीं रहा. कायरल कार्बन यानी चारों ग्रुप्स अगर अलग अलग होंगे तो वो होगा कायरल कार्बन. और कायरल कार्बन की उपस्थिति ही सिर्फ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को या मॉलिक्यूल को बनाएगा. तो उसका ये इम्पॉर्टेंट कंडीशन है फॉर एनी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, एक्चुअली इट शुड हैव कायरल कार्बन ऑल्सो. ओके, so in this case neutral, this glycine we saw, and also one more example I quoted here, that was what you all can see this now. This is COOH, here we are having this NH2 and this is CH3. So this is what alanine, this is also very important one. Okay, alanine, then tryptophan, that aromatic part. So you all can actually see this, the methionine, then threonine. So these are the different tyrosine also we are having. So these are the different examples of amino acids. Okay, so arginine, we actually arginine, the basic amino acids. Now I'm going to draw the structure of this. यहाँ देख लीजिए, ये हो गया आपका COOH, यहाँ पे आपका this NH2, now CH2, 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 this is CH, here you are here you are having this N, this H2, NH2, this is bonded with
C double bond with this NH and then NH2. Okay, so sorry, this is NH. Okay, तो इस तरह से देख लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 this basic groups we are having. So this is actually the case of arginine. Okay, so यहाँ पे देख लीजिए ये arginine ये क्या है, ये बेसिक अमीनो एसिड, ये है न्यूट्रल अमीनो एसिड और ये है आपका एसिडिक अमीनो एसिड. So I hope you all have understood this classification. You can classify the amino acids on the basis of बेसिसिटी, एसिडिक, उनका एसिडिक कैरेक्टर और उनका न्यूट्रल होना. तो तीनों क्या है, जो बेसिक है उसमें आपका नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप विल बी मोर देन दैट ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप विल बी मोर इन केस ऑफ दैट एसिडिक अमीनो एसिड, एंड इन न्यूट्रल but obvious what will be the case, the same number of amino and carboxylic group will be present. Okay, so you all can take the screenshot. I hope you did that. Okay. Now we all can classify this amino acid on the basis of, see, this is essential and non-essential amino acids. Essential and non-essential. So what exactly the difference between these two? See, this essential amino acids means they are actually means essential means in diet, means dietary supplement. Okay, that essential amino acid is not synthesized in the body, so it should be supplied through the diet. डाइट में आपके खाने में इसका होना ज़रूरी है, एसेंशियल अमीनो एसिड्स का. यहाँ देख लीजिए नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स में दिस इज कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी, दैट इज व्हाई यू डोंट नीड टू टेक इट. ओके, यहाँ पे उसको सप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आपको खाने में ये नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स को लेने की ज़रूरत नहीं है. कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी. ओके, तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए. non-essential, so this leucine, isoleucine, okay, and in this case alanine, glycine. Okay, so this will be synthesized, this is not synthesized in the body, and so this one examples you can actually not sure about it. So non-essential amino acids and essential amino acids. Okay, so essential means which cannot be synthesized in the body. So examples will be what, leucine, isoleucine, valine. So these are actually what the non-essential, this is alanine and glycine. Okay, so these are in this case you are having the leucine, isoleucine, then threonine, valine. Okay, so these are the example of this essential amino acids and non-essential which can be synthesized in the body. They are actually what, this alanine and glycine. Okay, now this essential and non-essential amino acids, so what they are, essential means which you need to take it in your diet, okay, in your food, that essential amino acids should be present, or non-essential amino acids which can be synthesized in the body only. Okay, so these are the classification of amino acids. Okay, done. Now next, यहाँ पर proteins. Okay, now see
we all are going to classify these proteins. Proteins means what? We actually saw what the amino acids are, the different, that nature of amino acids, the different that examples also we quoted. So what exactly amino acids, the types, we classified them on different basis. And then the protein part, okay, the important part, this protein. तो हमने पहले मोनोमेरिक यूनिट जो है एमिनो एसिड उसके बारे में पढ़ा, और अब हम बात करेंगे प्रोटीन्स की. प्रोटीन्स क्या है? ये है आपके पॉलीमेरिक चेन है अमीनो एसिड्स का. Amino acids, suppose you are having this amino acid, this COOH, and here you are having this NH2. This is one of the amino acid, and the other amino acid you are writing like this. Here यहाँ पे देख लीजिए, ये है आपका दूसरा अमीनो एसिड. सपोज ये है आपका ग्लाइसिन, यहाँ पे आप चाहें तो लिख लें, सॉरी ये आपका एलानाइन, और ये हो जाएगा आपका ग्लाइसिन. ओके, तो इस तरह से ये है एलानाइन. यहाँ पे अब ये जो पार्ट है यहाँ से देख लीजिए, ये OH. ओके, इफ़ यू वांट यू कैन राइट लाइक दिस. ये इस तरह से लिख लीजिए NH2 को. यहाँ से ये आपका OH और ये इस यहाँ से H, ये दोनों, ये यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल विल बी लॉस्ट. Loss of water molecule will result in the combination of this combination of these two amino acids. So they are combined by, with the help of this peptide linkage. We are actually calling it what? ये इस तरह से यहाँ से यहाँ ये जो जुड़ाव है इसे हम कहेंगे दिस इज पेप्टाइड लिंकेज. ये बन गया आपका पेप्टाइड लिंकेज. पेप्टाइड लिंकेज ही इन अमीनो एसिड्स को बांधे रखेगा, या इनको लिंक करेगा. तो ये इस तरह से आपका ये जो पार्ट है जैसे ग्लाइसिन, तो दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट? ग्लाइसिन एलानाइन. ग्लाइसिन एलानाइन. ओके, तो दिस बॉन्डिंग वी ऑल हैव सीन. ये जो लिंकेज है इसे हम कहेंगे पेप्टाइड लिंकेज. और पेप्टाइड लिंकेज देख लीजिए, हमारे मोनोमेरिक यूनिट कार्बोहाइड्रेट्स में हमारा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड उन्हें बांधे रखता था. ग्लाइकोसिडिक लिंकेज वॉज प्रेजेंट इन ऑर्डर टू लिंक द डिफरेंट मोनोमेरिक यूनिट्स इन केस ऑफ मोनोसैकेराइड्स, इन केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. और यहाँ पे हमारे मोनोमेरिक यूनिट को जोड़ने वाला, और मोनोमेरिक यूनिट क्या है? एमिनो एसिड्स. तो अमीनो एसिड्स को जोड़ने का काम कर रहा है पेप्टाइड लिंकेज. ठीक है, तो इस तरह से दिस विल बी लिंक्ड टुगेदर. एंड इसके आधार पे, मतलब जैसे दो अमीनो एसिड अगर जुड़ा है तो वी विल कॉल दिस चेन एज डाइपेप्टाइड. ओके, दिस विल बी कॉल्ड एज डाइपेप्टाइड. अगर आपका 4 अमीनो एसिड जुड़ा है तो वी विल कॉल दैट एज टेट्रा, मीन्स टेट्रापेप्टाइड. और वैसे ही पेंटापेप्टाइड, वैसे ही पॉलीपेप्टाइड, मीन्स मोर नंबर ऑफ this amino acids if they are linked together with the help of peptide linkage, तो उसे हम कहेंगे polypeptide chain. ठीक है, तो polypeptide chain, I hope you understood, with the help of this CONH, this peptide bond, the amino acids are joined like this. Okay, so this was the chain formation of this chain. And now we are going to see, we are going to study, means we will classify these proteins also. Okay, so first of all you all should know how the amino acids are going to be joined. So how they are joining, how they are linking. तो linking किसकी वजह से है? पेप्टाइड लिंकेज की वजह से, ये ध्यान रखिएगा. और यहाँ पर मतलब ये जो पार्ट है, अगर मैं यहाँ लिखूँ तो आप देख पाएंगे. हाँ, देखिए ये जो आपका दिस COOH, इनका नेचर, चलिए इनकी बात करें हम. अमीनो एसिड्स का ही ये पार्ट एक और यहाँ पे देख लीजिए, ये है बेसिक नेचर, ये है एसिडिक नेचर. कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, एसिडिक कैरेक्टर इसका जुड़ा हुआ है. तो यहाँ एसिडिक कैरेक्टर मीन्स द रिलीज ऑफ दिस H+. तो H+ को यहाँ से रिलीज अगर किया है, एंड दिस टेंडेंसी ऑफ नाइट्रोजन विल व्हाट? एक्सेप्टिंग द H+. ओके, दिस इज एक्टिंग एज ब्रॉन्स्टेड-लोरी, दिस ब्रॉन्स्टेड-लोरी बेस, और ये है ब्रॉन्स्टेड-लोरी एसिड. यानी एक H+ इसने यहाँ से जो लूज किया है, दैट विल बी एक्सेप्टेड बाय दिस, एंड इन डूइंग सो दे आर गोइंग टू फॉर्म, सी इन दिस केस बाय एक्सेप्टिंग H+, दिस विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, दिस विल एक्वायर दिस नेगेटिव चार्ज. एक ही मॉलिक्यूल में दोनों ही चार्ज का प्रेजेंस. सो दिस विल बी कॉल्ड एज द स्विटर आयन.
मतलब ज्विटर आयन, और यही जो ज्विटर आयन, सो दिस ओनली विल रिजल्ट इन व्हाट, बिकॉज ऑफ दिस ओनली दे आर सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ देख लीजिए, ये आपका ये पोलैरिटी, और इस यहाँ पे अमीनो एसिड्स दे आर सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज ऑफ दिस प्रेजेंस ऑफ दिस ज्विटर आयन इन अमीनो एसिड। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो ये पार्ट आपका यहाँ पर ये है, देख लीजिए, ये वाला ग्लिटर आयन का प्रेजेंट होना, ये COO नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होना। ठीक है, तो ग्लिटर आयन। ओके, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ दिस प्रोटीन, वी वर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट इट। तो देख लीजिए प्रोटीन, टाइप्स ऑफ प्रोटीन वी आर कंसिडरिंग फर्स्ट। यहाँ पर प्रोटीन दो टाइप्स के, एक तो फाइब्रस प्रोटीन, आई एम रबिंग दिस, आई होप यू नोटेड डाउन दिस। ओके, प्रोटीन्स, टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स हम पढ़ रहे हैं। टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स में यहाँ पे देख लीजिए, एक होगा आपका फाइब्रस प्रोटीन एंड द अदर वन इज ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ओके, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ओके, नाउ fibrous protein, suppose with the help of example you will understand more clearly। यहाँ देखिए fibrous protein में ये जो पार्ट है, actually they are what they are fibrous fiber। okay, fiber मतलब एक आप देख लीजिए इस तरह से, एक रेशा, एक धागा या एक रस्सी, इस तरह से समझिए, एक फाइबर की तरह ये इनका स्ट्रक्चर, और दे आर एक्चुअली जॉइंड बाय दिस हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन दिस the see this is actually the polypeptide chain, so they are combined with, because of this hydrogen bond they are staying together, this is hydrogen bond, यहाँ पे बांधे रखा है इसे, और ये है आपका फाइब्रस प्रोटीन। और इसके एग्जांपल्स क्या होंगे, इसके एग्जांपल्स हैं आपका केराटिन, जो कि प्रेजेंट है आपके हेयर्स में, केराटिन इन हेयर्स। ओके, फिर है आपका मायोसिन, ये आपका मसल्स में, मायोसिन इन मसल्स, and also collagen in tendon, collagen in tendon। तो ये एग्जांपल्स आप नोट डाउन कीजिए। और यहाँ ग्लोब्यूलर, ओके, तो यही पार्ट, अगर आपका ग्लोब्यूलर मीन्स गोल, आपका ग्लोब की तरह, ठीक है, अगर यही पूरा जो पार्ट है ये इस तरह से गोल गोल, अगर यही पूरा उलझा हुआ सा, ये अगर स्फेरिकल शेप ले ले, यही पूरा उलझ के पूरा अगर इस तरह से गोल शेप ले ले, ग्लोब्यूलर प्रोटीन एक स्फेरिकल शेप ले ले, तो हम कहेंगे, देख लीजिए ये क्या है, दिस इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ये इनका स्पेशलिटी देख लीजिए, इनसॉल्युबल इन, दिस आर एक्चुअली द एग्जांपल्स, द इनसॉल्युबल इन वाटर, इनका नेचर देख लीजिए, ये क्या है, सॉल्युबल इन वाटर, ये सॉल्युबल है, घुल जाएंगे। और इनके एग्जांपल्स क्या होगा, एग एल्ब्यूमिन, ओके, एंड हीमोग्लोबिन, दिस प्रोटीन ऑल्सो हीमोग्लोबिन, ये भी आपका ग्लोबुलर प्रोटीन के अंतर्गत आएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। समझ में आ चुका आपको, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो दे आर एक्चुअली टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स वी कंप्लीटेड। नाउ let's understand the structure of proteins। Covering this, देखिए स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, इनको सबसे पहले आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर, ओके, देन सेकेंडरी स्ट्रक्चर, देन टर्शरी स्ट्रक्चर, and then the quaternary। quaternary structure, यहाँ देख लीजिए प्राइमरी प्रोटीन। सो प्राइमरी प्रोटीन मीन्स व्हाट, suppose you are actually having suppose alanine you are having, and one more thing I forgot to tell you, जैसे अमीनो एसिड को हम 3 लेटर से भी दिखा सकते हैं और 1 लेटर से भी दिखाते हैं, पर 3 लेटर वाला ज़्यादा, जैसे ट्रिप्सिन और यहाँ पे है, या फिर आपका टायरोसिन है, या आपका मिथियोनाइन है, थ्रेयोनाइन है, सो वी आर एक्चुअली गिविंग 1 लेटर ऑल्सो, बट 1 लेटर विल बी मोर कंफ्यूजिंग। वाई? बिकॉज आपका मान लीजिए एलेनिन है, एस्पारेजिन है, एस्पार्टिक एसिड, so they all are actually going to the initial that letters are the same in all 3 of them।
तो वैसे ही अब ए तो इस तीनों के लिए ए तो लिखा जाएगा नहीं, तो इसके लिए क्या है, जैसे आपका एस्पारेजीन, तो उसके लिए क्या है, द कैपिटल एन वी आर यूजिंग, एक लेटर अलग से दिया गया है। उनको कंफ्यूजन को दूर करने के लिए 3 लेटर से भी आप दिखा सकेंगे, जैसे एस्पारेजीन, तो एस्पारेजीन के लिए वी विल राइट व्हाट, ASP, ओके। देन सी, यहाँ पर ASP, एलेनाइन के लिए ALA, इस तरह से आप 3 लेटर्स का भी, और टायरोसिन के लिए TYR, ट्रिप्टोफैन के लिए TRP, लाइक दैट यू कैन यूज। तो 3 लेटर से भी इनको दिखा सकेंगे आप, और एक दैट लेटर ऑल्सो इज मेड फॉर इट। और इसका कोई रूल्स नहीं है कि आप इसको कैसे याद कर पाएंगे या समझ पाएंगे, इसे आपको सिर्फ और सिर्फ आपको याद ही करना होगा, मतलब आप इसको खुद से प्रिडिक्ट कर पाना यहाँ पे संभव नहीं है, तो इसको आपको याद करना होगा, ठीक है। तो देख लीजिए, ये जैसे आपका, जैसे एलनिन आपका जुड़ा है, फिर आपका ग्लाइसिन जुड़ा है, फिर मान लीजिए टायरोसिन जुड़ा है, तो इस तरह से प्राइमरी लेवल में आप ये देखें कि जो एक सीक्वेंस है, ओके। तो अगर ये सीक्वेंस, जैसे मान लीजिए इसके बाद आपका यहाँ पर एस्पार्टिक एसिड आ गया, तो इस तरह से ये जो चेन है, तो दिस चेन मीन्स the amino acids will be linked together with the help of this पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इस तरह का जो ये चेन बन रहा है, तो ये आपका आ गया प्राइमरी लेवल पे, ठीक है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन विल बी मेड अप ऑफ व्हाट, द अमीनो एसिड्स। तो अलग अलग अमीनो एसिड्स आपके जुड़े हुए हैं, तो अगर ये सीक्वेंस आपने चेंज किया, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ये अगर आपने चेंज किया तो प्रोटीन पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा, पूरा प्रोटीन ही आपका बदल जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरह का प्रोटीन है जिसका सीक्वेंस बिल्कुल अलग होगा, बहुत स्पेसिफिक इनका नेचर। और वैसे ही यहाँ पे देख लीजिए, ये प्राइमरी देन सेकेंडरी, तो सेकेंडरी वाले पार्ट में यहाँ पे देख लीजिए, ये जो आपका जैसे एक यहाँ ये जो पार्ट है, मतलब ये आपका एक पॉलीपेप्टाइड चेन से कहेंगे हम, है ना। देख लो, एक ये अमीनो एसिड, ये कई सारे अमीनो एसिड्स, दे आर बॉन्डेड विद दिस पेप्टाइड चेन, और हम उसे कहेंगे पॉलीपेप्टाइड। तो यही जो पॉलीपेप्टाइड है, और आप यहाँ भी ध्यान रखिए कि जो प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स आर एक्चुअली मेड अप ऑफ व्हाट, मोर देन 100 अमीनो एसिड्स, मतलब 1-2 अमीनो एसिड नहीं बल्कि हंड्रेड्स ऑफ अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन योर प्रोटीन। और उनका मॉलिक्यूलर मास भी क्या है, दैट इज मीन्स मोर देन 10,000 यूनिफाइड मास, AMU या यूनिफाइड मास आप कहें, तो आपका ये कोई पूरा 10,000 से भी ज़्यादा है। लेकिन एक्सेप्शनल केसेस ऑलवेज आर देयर इन केमिस्ट्री। तो एक्सेप्शन क्या है, इंसुलिन। तो इंसुलिन आपका जो प्रोटीन है, व्हाट यू कैन राइट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एक मार्क्स का क्वेश्चन भी ये भी आ सकता है। तो इंसुलिन एक्चुअली इज मेड अप ऑफ 51 अमीनो एसिड्स, 51 है, देख लीजिए, इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन बिकॉज ऑफ द डेफिनेट कन्फर्मेशन, उनका जो डेफिनेट स्ट्रक्चर तो होने की वजह से उसे भी प्रोटीन का दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 51 अमीनो एसिड्स का प्रोटीन जो है वो है इंसुलिन, ठीक, याद रखिएगा। चलिए, तो ये जो पार्ट था, ये जो प्राइमरी आपका यहाँ पे, सेकेंडरी और ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। ये है आपका अल्फा हेलिक्स और दूसरा है आपका बीटा प्लीटेड शीट्स। देखिए, अब इन दोनों बहुत ढंग से मतलब समझिएगा। अल्फा हेलिक्स यानी देख लीजिए, आपका अगर एक यहाँ से एक ये इस तरह से, मतलब ये यहाँ पर ये जो आपका स्ट्रेट ये सीक्वेंस देख पा रहे हैं आप, एलेनिन, ग्लाइसिन, टायरोसिन एंड दिस एस्पार्टिक एसिड एंड व्हाटएवर द डिफरेंट द अमीनो एसिड्स आर लिंक्ड टुगेदर। अगर ये इसका, जैसे मान लीजिए इसका कार्बोक्सिल ग्रुप और इसका NH, इफ दे आर गोइंग टू मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड, अगर इसका नाइट्रोजन और दूसरे का H के साथ अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, तो ये क्या है, द टर्न्स विल स्टार्ट कमिंग, मतलब इस तरह से टर्न होना शुरू हो जाएगा, ये मुड़ जाएगा। इसके यहाँ पर मतलब जो कार्बोक्सिल ग्रुप है उसका यहाँ नाइट्रोजन के साथ यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, तो ये क्या होगा, द टर्निंग विल स्टार्ट। तो इस तरह से इसका, जैसे ये अल्फा हेलिक्स से ना, तो अल्फा यानी ये जो पार्ट होगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से स्प्रिंग टाइप से, मतलब ये जो कॉइलिंग आप देख पा रहे हैं, तो दिस इज एक्चुअली व्हाट, द अल्फा हेलिक्स, ठीक है।
अल्फा मीन्स राइट हैंड साइड की तरफ अगर आपका ये फेस है इस स्प्रिंग का तो वी विल कॉल इट एज अल्फा हेलिक्स। अगर ये इस तरह से होता इधर से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ अगर दिखता तो वो होगा आपका बीटा हेलिक्स। तो इस तरह से हेलिकल स्ट्रक्चर भी गॉट नाउ। तो हेलिकल स्ट्रक्चर ये सेकेंडरी पार्ट में आ गया ये। और वैसे ही मतलब जैसे ये जो पार्ट है अगर ये एक तरह का ये वाला जो आपका एक पॉलीपेप्टाइड ये चेन और फिर इसमें इस तरह से फिर इस तरह से ऐसे अगर ये प्लेट्स बनती जाए, ठीक है। प्लेट्स बनना यानी जैसे देख लीजिए यहाँ पे जैसे सपोज यहाँ ये जो है पार्ट, ओके, तो यहाँ अगर हम ऐसे दिखाएं, ठीक है, तो ये जो प्लेट्स हमने बना ली है, देखिए ये एक प्लेट, ये दूसरा, ये तीसरा, इस तरह से अगर हम ये जो प्लेट्स बना रहे हैं यहाँ से पेप्टाइड ये एक पेप्टाइड चेन ये है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह से अगर ये फोल्डेड मतलब प्लेट टाइप आपका अगर यहाँ पे दिखेगा ऐसा, तो ये दिस विल बी कॉल्ड एज बीटा प्लीटेड शीट्स। ये इस तरह से एक के ऊपर एक फोल्डेड फोल्ड्स यहाँ बने हुए हैं। और ये क्या है, मोर दैट कॉइलिंग विल बी मोर इन केस ऑफ दिस स्प्रिंग टाइप, मतलब यहाँ पे ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स हो गए आपके। ये इस तरह का स्ट्रक्चर और ये दोनों ही स्ट्रक्चर ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह, मतलब यहाँ पे बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा है और यहाँ पे भी आपका हाइड्रोजन बॉन्ड से, पर यहाँ पे आप इसको और ज़्यादा यहाँ और पास दिखा दें ऐसे इनके। तो ट्विस्ट एंड टर्न विल बी मोर इन केस ऑफ अल्फा हेलिक्स helical structure and beta pleated sheet. So this type of structure you all are going to get in case of this. यहाँ पे मान लीजिए एक आपका एमिनो एसिड, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, फिर इन दोनों के बीच में क्या है, ये दोनों और टर्न क्यों हो गए, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड भी बन गया है। और इस तरह से ये वाला जो पार्ट है ये बनते बनते मतलब एक अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर एंड बीटा प्लीटेड शीट्स। सो दीज आर व्हाट द सेकेंडरी दैट सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। प्राइमरी आपको समझ में आ गया। देख लीजिए प्राइमरी दिस पार्ट, ओके, दिस इज सेकेंडरी। सेकेंडरी ऑल्सो इज ऑफ टू टाइप्स, अल्फा हेलिकल और बीटा प्लीटेड शीट्स। नाउ अगर यही आपका जैसे ये पार्ट अगर ये और ज़्यादा इस तरह से और सुपर कॉइलिंग मतलब इसमें और ज़्यादा कॉइलिंग अगर हो जाए तो ये दैट विल गिव राइज टू टर्शियरी स्ट्रक्चर। आई होप यू ऑल कैन सी दिस पार्ट। ये जो है आपका टर्शियरी दिस स्ट्रक्चर यू गॉट, मतलब यहाँ से आपका ये दोनों आपस में जुड़ रहे थे हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से टर्न्स हुए और उसके बाद यहाँ पे मतलब डाइसल्फाइड लिंकेज ऑल्सो इज प्रेजेंट हियर, ओके। तो अब यहाँ पे डाइसल्फाइड लिंकेज और हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे और पास रख रहे हैं और इस तरह से मोर कॉम्प्लेक्सिटी यू ऑल कैन सी। ये आपका सिंपल सा स्ट्रक्चर था प्राइमरी स्ट्रक्चर और कॉइलिंग शुरू हो गई, ये अल्फा हेलिकल बीटा प्लीटेड। उसके बाद ये जो है और कॉइलिंग मतलब फर्दर मोर कॉइलिंग दैट गिव मोर फोल्डिंग मतलब ये और फोल्ड हो गया तो बन गया आपका टर्शियरी स्ट्रक्चर। एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर इज एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल, मतलब आपका बीटा प्लीटेड भी हो गया जैसे एक बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड चेन, सपोज दे आर एक्चुअली सपोज दिस वन यू आर हैविंग द स्ट्रक्चर दिस एंड नाउ वन मोर स्ट्रक्चर विद बीटा प्लीटेड ऑल्सो और यहाँ पर इस तरह से कॉइलिंग और तो दो तीन अगर मान लीजिए कि तो और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है। तो दो तीन तरह के जो पॉलीपेप्टाइड चेन है अगर वो इस तरह से उलझ जाए, वो इस तरह से यहाँ पे और यहाँ बॉन्ड्स देख लीजिए कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर डाइसल्फाइड बॉन्ड, then you are having this van der Waal forces of attraction, van der Waal forces और फिर आपका यहाँ पे electrostatic force of attraction. So all these are present in this quaternary structure. So because of these different bonds, this forces of attraction, more stability you are going to observe in case of quaternary structure. ठीक है। और अब इसका जो लास्ट पार्ट है वो है डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन, ओके। ये आई होप यू अंडरस्टूड। यू ऑल कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल द 4 लेवल्स प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ यही अगर आपका डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन मीन्स व्हाट, इफ यू वांट यू कैन राइट डाउन, वर्बली आई एम टेलिंग यू। See, denaturation of protein means
द लॉस ऑफ द नेटिव कन्फर्मेशन of the proteins, okay, when it is subjected to that change in temperature and change in pH. pH और टेम्परेचर को चेंज करने से ये जो आपका जैसे यहाँ पे बहुत कॉइल्ड, यहाँ पे हमने देखा बहुत ज़्यादा कॉइलिंग हो गई, फिर वहाँ पे हमने इतने सारे बॉन्ड्स देखे कि बॉन्ड्स हैं जिनको कि बहुत मजबूती दे रहे हैं, तो ये बॉन्ड्स मतलब दिस चेंज इन टेम्परेचर विल रिजल्ट इन व्हाट, द अनफोल्डिंग ऑफ दिस स्ट्रक्चर। ये जैसे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ये अनफोल्ड हो गया, ये अलग हो गया, फिर ये टर्शरी, ये आपका टर्शरी के जैसे खुल के बन गया, यहाँ पे और अगर ये खुल गया तो ये आपका सेकेंडरी टाइप बन गया, ये भी अगर अनफोल्ड हो गया तो आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर तक बन जाएगा। मतलब ये डीनेचरेशन से मतलब क्या है यहाँ पर, डीनेचरेशन मीन्स द unfolding and uncoiling of the see the different structures, okay, so unfolding of the protein, uncoiling of the different structures. Suppose quaternary will be changed to the tertiary, tertiary will be changed to secondary, and secondary will in turn give rise to primary. So these are what denaturation. अब उसका जैसे आपका कोएगुलेशन, मतलब जैसे मान लीजिए कि अगर आप बात करें एग एल्ब्यूमिन, तो अगर आप उसको बॉईल करें, एग को अगर आप बॉईल करें तो आप क्या पाएंगे कि वो सॉलिडिफाई हो गया है, और अब उसका जैसे वो पहले घुल जा रहा था, पानी में घुल जा रहा था, वो एक ग्लोबुलर प्रोटीन के अंतर्गत आ रहा था, तो वो आपका क्या बन जाएगा, अब एक फाइब्रस प्रोटीन मतलब वो बन गया, अब आपका घुलने नहीं वाला, ये इनसॉल्युबल हो गया है अब आपका। तो ये जो अपना खुद का जो नेचर है, जो ओरिजिनल नेचर था प्रोटीन का, दैट वाज लॉस्ट कंप्लीटली। तो दिस ओनली इज एक्चुअली कॉल्ड एज व्हाट, डीनेचरेशन। तो डीनेचरेशन टेम्परेचर में बदलाव की वजह से और पीएच में चेंज की वजह से यहाँ पे होगा, और डीनेचरेशन यानी अनफोल्डिंग एंड अनकॉइलिंग ऑफ the different complex structures of proteins, okay. So this is only the last that topic of denaturation of proteins. So I hope you understood this part. So we actually started with what, the polysaccharides. We saw the different structures of सैकराइड्स। पॉलीसैकराइड्स में हमने स्टार्च की बातें की, फिर हमने सेल्यूलोज का भी स्ट्रक्चर देखा, और फिर हमने ग्लाइकोजन की बात की। ग्लाइकोजन क्या है, दिस इज एक्चुअली वेरी मच सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन, हाईली ब्रांच्ड अमाइलोपेक्टिन, सो दैट ओनली विल बी कॉल्ड एज ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन इज एनिमल स्टार्च, प्लांट स्टार्च है आपका प्लांट्स में, और ये सेल्यूलोज भी है आपका प्लांट्स में, बहुत मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल, ओके, इन प्लांट्स, तो वो है आपका सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज एक्चुअली मोनोमेरिक यूनिट है, बीटा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज याद रखिएगा स्टार्च में है, और कॉइलिंग आई टोल्ड यू, ये सब आपका जो नेक्स्ट हमने स्टार्ट किया प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स में हमने पहले तो क्लासीफाई किया प्रोटीन्स को, प्रोटीन से पहले हमने बात की अमीनो एसिड्स को। तो वी एक्चुअली क्लासीफाइड द अमीनो एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ग्रुप्स, एसिडिक और बेसिक कितने प्रेजेंट हैं, उनके बेसिस पे हमने 3 टाइप्स के अमीनो एसिड्स देखे, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, ठीक है। उसके बाद हमने बात की ज़िटराइन की, और फिर हमने प्रोटीन्स के 2 टाइप्स देखे, फाइब्रस और ग्लोब्यूलर। तो फाइब्रस यानी फाइबर की तरह, रेशे की तरह, या फिर एक रोप की तरह, और दूसरा ग्लोब्यूलर यानी एक स्फेरिकल शेप जब ये ले ले, ठीक है। तो तब हम ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन की बात, और दोनों का ही एग्जाम्पल क्या है, फाइब्रस प्रोटीन का एग्जाम्पल हेयर्स आपके, केराटिन प्रेजेंट इन हेयर, और मायोसिन प्रेजेंट इन मसल्स, ओके, द एग्जाम्पल्स ऑल्सो आई कोटेड। फिर उसके बाद आपका एग एल्ब्यूमिन और हीमोग्लोबिन आपका एग्जाम्पल है ग्लोब्यूलर प्रोटीन का। फिर हमने नेक्स्ट हमने बात की इस प्रोटीन की, यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर्स देखे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। और फिर उसका जो खुलना शुरू हो गया, जैसे ये अगर खुलना शुरू हो गया क्वाटरनरी, टर्शरी में, टर्शरी खुल के सेकेंडरी बन गया, सेकेंडरी फिर प्राइमरी। और हाँ, यहाँ याद रखिए कि प्राइमरी दैट स्ट्रक्चर इज़ नॉट गोइंग टू बी लॉस्ट एट ऑल, ठीक है। तो वो प्राइमरी स्ट्रक्चर के बाद और यहाँ खुलेगा नहीं, तो वो प्राइमरी स्ट्रक्चर दैट कैन नॉट बी फर्दर डिस्टर्ब्ड।
तो वो ये आपका बचा रह जाएगा, प्राइमरी जो सीक्वेंस है ये प्रोटीन का वो बचा रह जाएगा। बाकी ये सारे आपके खुलते जाएंगे, अनकॉइलिंग होती जाएगी, अनफोल्डिंग होती जाएगी प्रोटीन की, और वही अपना जो नेचर है उसका जो ओरिजिनलिटी है वो लूज़ कर देगा, और यही एक कहलाता है डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। और दो इसके रीजंस होंगे, चेंज इन पीएच एंड चेंज इन टेम्परेचर। I hope you all understood this. We revised, summarized everything. So in the next video I'm going to tell you about this nucleic acid, and then very hurriedly we will also talk about the nucleic acids के बाद हम बात करेंगे vitamins की, और बहुत थोड़ा सा enzymes के बारे में बात करेंगे। तो all these different topics, very small topics are left now. बस अब न्यूक्लिक एसिड बचा इसके बाद पार्ट है जो कि डिटेल्स में हम देखेंगे, और वो हमारा लास्ट वीडियो होगा। नेक्स्ट वीडियो विल बी द लास्ट वीडियो ऑफ दिस बायोमोलिक्यूल्स। ओके, सो you all should actually go through this, the whole first, second, third video I completed. The fourth video also is required now, वो भी आपका जल्दी ही I'll give you, and questions already हमने questions भी इसके NCERT टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा क्वेश्चन, जैसे एक और आपको बताया था कि क्वेश्चन जैसे एक पार्ट आपका वो भी आ सकता है कि ये यहाँ पे मतलब जितने भी ये जो पार्ट हैं इन सभी में कौन सा है जो कि सल्फर कंटेनिंग, ओके, तो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स, ओके, सो दैट विल बी व्हाट सिस्टीन, तो वो भी ध्यान रखिएगा। बस इस तरह से हमारा जो एरोमेटिक वाला अगर पूछा जाए तो वो है ट्रिप्टोफैन। इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चंस इस पर बन सकते हैं, तो आप ये ज़रूर एक एक चीज़ ध्यान में रखिएगा। और ये सारे जो भी डायग्राम्स वगैरह हैं वो भी डू प्रिपेयर इट, मेक द डायग्राम, रफ डायग्राम ओनली इज़ रिक्वायर्ड। द science students are not actually we are not expecting a very nice kind of very that means artistic that touch we don't want from the science students, a rough diagram only, and especially the labeling is very much necessary. So you all should actually make the diagram like this, and do prepare nicely for your exams, any kind of exam which you are facing. So for that also this biomolecules, all the videos will help you. Okay, so do watch it. Thank you so much. Thank you.